Hello everyone, good morning. Welcome you back in the triangle topic. Yesterday I saw the reduced syllabus. Everything I have seen, we have a complete watch on it. But I believe very few things are reduced. Rather, I can say that the things which were very easy to understand and to solve, only unfortunately those things are reduced. So basically, I would tell you the syllabus is not that way reduced. It is just the easy part is been deleted from the syllabus. Anyway, unfortunately it is happening with mathematics. It's okay, no problem, we'll continue with our regular work. So here we are with the HOTS question, maybe the last day of the triangle topic. So let us continue the last day of the triangle topic. So first of all, few HOTS which we skipped before this, that we will be completing. Okay, first question is this. It is not HOTS, it is a simple question. So why I have taken it, because you should understand the difference between the simple question and this is HOTS question, because it looks similar. Okay, and normally you don't get HOTS question. Normally we don't get this, but still can't say. So that's the reason I'm teaching you. But normally we find this simple question in your question in your paper. Okay, it's again asked for 4 mark. Even the HOTS is asked for 4 marks. So what is the difference? Check karo what is given here. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. It is given. And over here, if you check, AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM. So that is the basic difference between simple question and easy difficult question. So anyway, it is a simple one. Let's solve it. Okay, so I know that AB upon PQ, I'll directly solve it. I know that AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AD upon PM. As we have already solved it, I'm not going to waste my time in explaining it. BC upon QR I can replace as BD upon QM. So in two ways I can do that. AB upon PQ is equals to, I can just directly multiply by half to both the sides. So half of BC upon half of QR is equals to AD upon PM. This is the one way. And second way, I can directly write BC as double of BD and all. Even that I can do. And 2 get cancelled. But anyway, we'll continue with this. So it is AB upon PQ is equals to half of BC is BD and half of QR is QM is equals to AD upon PM. So it's very clear. Using these three sides in proportion, I can easily say that the shaded region is similar. Check karo, AB upon PQ is equals to BD upon QM is equals to AD upon PM. So therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM by SSS test. I just hope this is clear. Getting it? आगे बढ़ते हैं. Now, but we were not asked for proving this triangle similar. I have to prove this triangle similar, and this we have done so many times. So again I repeat, just simply B and Q are equal. The angle B is equals to angle Q, CAST, and we know that AB upon PQ is equals to BC upon QR. See, which is clearly given here. So I can easily prove the triangle ABC. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test. So of course, this was a very simple sum, but it's not the same here. In this question, we are given not BC upon QR. Instead, we are given AC upon PR, and still we have to prove the same. So that becomes difficult. तो यहाँ पे construction की ज़रूरत पड़ती है. I'll just show you the construction. Construction is extend AD such that AD is equals to DE maybe and join CE. Similarly, extend PM such that PM is equals to MN and join RN. N sounds like M, so I'll just change that. MPQRS I'll take. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड. बहुत कुछ करना है इसमें, तो चलो वन बाय वन सब कुछ करते हैं. मुझे लगता है कुछ 4-5 स्टेप्स है इसमें, तो हर एक स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे ठीक से, धीरे धीरे, वन बाय वन. ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हाउ कैन आई सॉल्व. The first thing is I have to prove triangle ABD is congruent to triangle EDC. ABD ECD. Okay, ECD. How can I do that? I think by SAS test.
चेक करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. कॉन्ग्रुएंसी आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इज दिस टू साइड इक्वल? यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ये दो ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल. So do you have these two triangles congruent? By SAS test. And similarly I have to prove triangle PQM congruent to triangle PQM congruent to SRM. And the reason is same. Okay, so first one you can prove and the second one you can write similarly. तो ये first step है आपका triangle को congruent बनाने का. But why I am doing it, I'll just explain you. So if these two triangles are congruent, it's very clear that this side is equals to this side and this side is equals to this side. That means I mean to say AB is equals to CE and PQ is equals to RS. ये clear हो गया? This is by CPCT because it's congruency. Now let us know the given. Given क्या है? AB upon PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PM. So two things I'll be doing. AB I'm going to replace by CE and PQ I'm going to replace by RS. Why I'm doing all these things in short time you'll come to know. सबसे पहले बात कॉन्ग्रुएंसी तो समझ में आ गई. अभी हम लोग क्या करेंगे? गिवन का यूज करेंगे. AB is been replaced by CE and PQ is replaced by RS is equals to AC upon PR. I'm going to keep it as it is equals to AD upon PM. मैं क्या करता हूँ? इनको दोनों 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो 2 टाइम्स AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM. ये सब कुछ आपको अभी भी इन शॉर्ट टाइम समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ. ओके, तो अभी हम लोग करेंगे CE अपॉन RS जो है वैसे लिखते हैं. CE अपॉन RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR. व्हाट इज डबल ऑफ AD? AD का डबल क्या होगा? AE हो जाएगा. एंड डबल ऑफ PM क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा. तो अभी देखो ये ठीक से कॉन्सेंट्रेट एंड चेक करो ये तीनों के तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल के पार्ट है क्या? AC CE okay and RS okay, AC and PR fine, and AE and PS. So I hope you understand that triangle ACE is similar to triangle PRS by SSS test. अभी आपको समझ में आ गया ये सब कुछ हमने क्या किया, तिकड़म क्यों लगाई, ये सारी चीज़ें हमने क्यों की. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमें गिवन था इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ट्रायंगल. ये सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन किया सब कुछ किया वो एक ही चीज़ के लिए किया क्योंकि ये जो गिवन था ये किसी भी ट्रायंगल के पार्ट नहीं थे. तो उसको लाने के लिए हमने ये सब कुछ किया. तो उसके लिए अलग सा कंस्ट्रक्शन किया, AB को CE से एंड PQ को RS से इक्वल किया. And then in this given we made the required changes so that I can get these 3 ratios as a side of 2 triangles and so that I can make some triangle similar at least. यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई होगी. ओके, तो नाउ अभी हो गया खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो गया. बस अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाना बाकी है. अभी ये जो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब एक तो क्लियर सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. तो हम लोग इसको x नाम देते हैं एंड इसको y देते हैं या फिर x ही कर सकते हैं. इक्वल है तो x कर सकते हैं लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा है ना. x एंड x हो तो इक्वल है तो समझ में नहीं आएगा. तो चलो ठीक है, अभी टेम्परेरी टाइम बिंग हम लोग उसको भी x कंसिडर करते हैं एंड ये भी एंगल इक्वल होगा तो ये भी टेम्परेरी हम लोग y कंसिडर करते हैं. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? If this angle is equal to this angle, isn't it CAST, right? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं triangle DAC is equal to triangle MPR is equal to X and triangle DEC is equal to triangle MSR and is equal to Y. यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, इसका रीज़न क्या होगा? CAST बराबर है ना. एक्स एंड वाई तो हमने कंसिडर कर लिया है, राइट. अभी जस्ट इमेजिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. कैन यू टेल मी द रीज़न वाई? आपको पता है ना कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा वाई. वैसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये भी हो जाएगा वाई. ठीक है. सो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर वी हैव BAC इज इक्वल टू एंगल QPR is equals to x plus y. बराबर है ना, x plus y. So isn't it these two angles are equal? Okay, and I know that AB upon PQ is equals to AC upon PR. देख लो दो साइड्स इन प्रोपोर्शन एंड बीच वाला एक एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by SAS test. हो गया. I hope you are clear with this.
ओके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ आते हैं। ओके कॉन्ग्रुएंसी आता है, ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट आता है, एसएसएस टेस्ट जो एक बार ट्रायंगल प्रूव करना है, सिमिलर फिर दूसरा ट्रायंगल प्रूव करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एट ए टाइम आते हैं, कंस्ट्रक्शन भी है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, इसको मैं बार बार रिवाइज करता रहूँगा सो दैट यू रिमेंबर इट फॉर एवर। ओके सो डोंट वरी, राइट नाउ जितना आप कर सके, जितना आप समझ सके उतना समझ लो, एंड देन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट लेटर ऑन एज वेल। So now what you can do is you can complete that question however is possible for you and then come back to this question. ये लगता है HOTS है थर्ड क्वेश्चन, बट ये है बहुत सिंपल, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, बस लॉजिक को याद रखो, ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा समझ में। इट इज अबाउट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो व्हाट डू आई नो अबाउट एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हो जाता है? ये बस स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करो इसका और सिमिलैरिटी से क्या रिलेशन है, हमें फाइंड क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये HOTS क्वेश्चन था, हमने स्किप किया था, मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ट्रायंगल टॉपिक राइट नाउ। ओके सेकेंड लास्ट इन योर PDF। ओके लास्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई ऑल बाय योर सेल्फ, वो तो DIY है, डू इट योर सेल्फ है ये, लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपको करना है खुद से। ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन HOTS वाला। ठीक है, ये सॉल्व है इन योर टेक्स्ट बुक, आई आस्क्ड यू टू सॉल्व इट, ट्राई इट, होप यू हैव डन इट। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, ऐसे अगर पैरेलल दिया है, कुछ एरिया इक्वल ऐसे दिया हुआ है, इक्वल एरिया, तो इसका मतलब ये चीज़ सिंपल है कि हमें कुछ ट्रायंगल सिमिलैरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इट्स वेरी क्लियर, ट्रायंगल AXY is similar to triangle ABC. AXY similar triangle ABC by AA test. अब तो प्रूव कर सकते हो इसको, अभी तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल AA टेस्ट, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बहुत सिंपल है आपके लिए अभी, है ना, ट्रायंगल को सिमिलर बनाना। अभी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हाउ अबाउट देयर एरिया? नाउ एज आई नो दैट देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, सो दैट आई विल राइट AXY upon area of triangle ABC is equals to what is asked to find out? AX and AB मुझे पूछा है, तो it is AX square upon AB square। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ एक बात तो सही है कि हमारे पास दोनों के एरिया नहीं है एंड मुझे ये फाइंड करना है, मतलब दिया तो कुछ नहीं है लेकिन फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और द इन्फॉर्मेशन सेज के दे आर डिवाइडिंग इनटू इक्वल ट्रायंगल्स। Okay, you understand? Equal triangles, equal area you can say. तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया के साथ इक्वल है। ओके मतलब अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? x होगा। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का एरिया। बात समझ में आ रही है? यही है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें। इतना समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन ABC को मैं क्या करता हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल XYCB कर देता हूँ। XYCB, अरे ये एक्स्ट्रा सी कहाँ से आ गया? ठीक है, इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सो नाउ AXY का तो x है वैल्यू, AXY नीचे x है, इसका भी x है, तो नीचे हो जाएगा 2x, सो x अपॉन 2x हो जाएगा, x अपॉन 2x इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। x गेट कैंसिल, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AX अपॉन AB स्क्वायर ऑफ कोर्स, but I need AX upon AB, that means root I have to square I have to cancel, so I have to take root of both the side, so 1 upon root 2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होगा, इज इक्वल्स टू AX अपॉन AB। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करने के लिए किया क्या है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग AX अपॉन AB और इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू फॉर AX अपॉन AB, इट इज सेड BX अपॉन AB। ये है कंफ्यूजन। ठीक है, अभी ये तो क्लियर सी बात है कि BX इज नॉट अ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, सो अकॉर्डिंगली वी विल नेवर गेट BX इफ यू सॉल्व इन द सेम मैनर, राइट? नेवर गेट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट because it's not a side of any triangle, right? So then what can I do? AB is the side of a triangle but BX is not. So now what I have to do is very simple. You don't have to do anything other than what we have done right now. Just one simple thing you have to do, you have to find BX using this ratio.
Okay, so therefore here if I separate the ratio, ax will be equal to, you remember that रेशियो अगर होता है तो हम कॉमन मल्टीपल लेते थे, यू रिमेंबर दैट. तो वही चीज़ करनी है. तो एक्स क्या आ जाएगा, रिमेंबर वन ए आ जाएगा मे बी, एक ए इज़ ए कॉमन मल्टीपल लिया, एंड ए बी क्या आ जाएगा, √2 ए आ जाएगा. तो व्हाट विल बी बी एक्स इज ए बी माइनस ए एक्स विच इज ए बी √2a माइनस ए. तो इट विल बी √2 माइनस 1 इंटू ए. ये आ गया मेरा बी एक्स. सो देयर फोर यहाँ पे मैं करता हूँ बी एक्स अपॉन ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन ए बी क्या है, √2a. ये आ गया ऐसे करके ए है इंटू ए गेट कैंसिल, इट इज़ √2 माइनस 1 अपॉन √2. ये हो गया आपका पी एक्स अपॉन ए बी. ठीक है, समझ में आ गया. इज दिस क्लियर. यहाँ पे देखो रेशियो कॉमन मल्टीपल लिया है, यू अंडरस्टैंड दैट, कॉमन मल्टीपल. सो सेपरेट कर सकते हैं ना इस रेशियो को हम लोग कॉमन मल्टीपल लेके. तो ए इज अ कॉमन मल्टीपल, तो ए एक्स विल बिकम 1a एंड ए बी विल बिकम √2a. ठीक है, तो सेम वैल्यू आई हैव यूज्ड हियर एंड वी फाउंड बी एक्स. एक बार बी एक्स मिल गया तो बी एक्स अपॉन ए बी तो इजीली मिल जाएगा, इजंट इट. तो दिस इज व्हाट योर सिंपल क्वेश्चन. तो ये हो गया आपके HOTS. एक HOTS पाइथागोरस थ्योरम में भी है, लेकिन वो हमने ऑलरेडी रेगुलर क्वेश्चन करते हुए किया हुआ है. सो नाउ इट इज़ डन. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज वी हैव सम सिलेबस रिड्यूस्ड एज वी गॉट टू नो. ट्रायंगल में से भी कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इट इज़ अबाउट थ्योरम्स. सो लेट अस राइट नाउ कंसिडर दैट वी हैवंट रिड्यूस एनी सिलेबस फ्रॉम द ट्रायंगल टॉपिक. एवरीथिंग वी हैव टू कंप्लीट. तो आज से आपको कंप्लीट क्या करना है, आज से आपको शुरू क्या करना है, या फिर कल से शुरू कर सकते हैं इफ़ यू वांट. हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, और जो भी रिवीजन शुरू करेंगे वो ट्रायंगल से शुरू करेंगे फॉर योर PT1. ओके, ट्रायंगल से रिवीजन शुरू करते हैं. तो व्हाट यू हैव टू डू, ट्रायंगल का आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है. एक एक्सरसाइज एवरीडे कंप्लीट करना है आज से ही. जितने जल्दी आप लोग शुरू करोगे उतना कम काम आपको एवरीडे करना पड़ेगा. इसलिए आई रिपीट अगेन, आज से आप लोग या फिर कल से शुरू कर सकते हैं. तो कल हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. एक कोई भी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. मुझे लगता है BPT वुड बी द बेस्ट वे. जब आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तब उससे पहले वाले सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. सो रिमेंबर 2 थिंग्स यू हैव टू डू. सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है. तो आज आई होप यू विल डू इट, और मे बी टुमारो यू विल डू इट. ठीक है, तो मैं वैसे अकॉर्डिंगली कल ग्रुप में मैसेज भेजता हूँ कि आपको क्या कंप्लीट करना है. आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एंड कल से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, द इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. टिल देन, बाय बाय, सी यू टुमारो.